All right. So we have to next perform the modeling part of the data set. And in data frame DF3, we do have text and label. Data cleaning I did performed already in the previous lecture. You have seen the data cleaning part. The basic steps which are possible from our side we have done. For Bangla text, removal of stopwords, punctuation marks, okay, and digits also I have included in this course. So removal of digit been also done, and with the help of beautiful soap, we have removed the HTML tags also. So the basic kind of cleaning is being performed over this data, and now the thing is I need to apply the model for classification. Okay, so here I'm taking the maximum length 800, that will be the sequence length. Okay, for interpretation and giving this much amount of data in a sequence to the model. Okay, and then I am creating the list of the entire data. Okay, create the list of entire data. Fine. So here your line df3 text str split to list, it will process the text data stored in the data frame. It will access the text, it will split it, and it will make a list of words. Okay, like this is the first text, here is another text, and so on. So ultimately what I am doing, let me share my entire screen to make you understand, because this is a valuable concept. Since you are going to use the models like LSTM and by LSTM, so this is very important concept. You are having df3 text, the entire text you are available with. So what you are doing in this particular text, in this particular column, you are having something written in Bangla here, something written in Bangla here in row number 0, and so on. You are having the things written in Bangla. What it is doing is it's creating list of tokens or words. Okay, for the entire text, it is creating that. You can see in the example. Okay, here you can see. So, for example, in sentence number 1 here, something written in Bangla, it will make the list of it. Something which is written here in the sentence number 2, it will make list of it, and so on. It will make list of all. That's what I am doing. The overall idea is to create a sequence ahead. That's what I want to do. I want to create a sequence because I will be feeding this sequence to the model. That's what I'm going to do. I'll feed the sequence to the model. Analysis. Okay, so that's what I'm going to do. Fine. Yesterday only I told I'm taking word to vec model. Yesterday only I told word to vec. It's a pre-trained model.
which can convert this text or tokens into vectors. Okay, every token or every word will be vectorized. That's what happens in large language models also, and we call them as embeddings. Okay, fine. So here also I am doing the same. I am performing the vectorization using this pre-trained model, word to vec. Okay, so every word present here in the list, every token will be vectorized. Okay, for example, if I take English, so if you are having the words like a, cat, rat, mat. So for a, there will be a vector. For cat, there will be a vector. Okay, and for rat also and for mat also. There will be vector. Okay, so for that, I'm taking this GenSim, this library in natural language processing to implement vector models. I'm taking this pre-trained model, vector model. Okay, and this is my text, and I'm defining the vector size as 100 here. Okay, so whatever be the vectorization I will do now. Okay, here you can see the dimension will be of 100. So you will create a vector that is of a dimension 100. For example, it will be a vector of dimension 100. That means 100 numerical values will be present here. This is what you are doing. And when also I teach now this LLMs, large language models, and whenever I print that embedding part and that part, so many values like this are displayed, so many values. The reason is, okay, this vectorization, and then internally there is attention mechanism, weights, all will be printed, so such kind of values only will be there. Fine. Okay, so this is what we do. Window 5 means, okay, the parameter defines the maximum distance between the current and the predicted word within a sentence. Window 5 means the model will consider up to 5 words before and after the target. Okay, that's what the model will do. 5 words before and 5 words afterwards. That is a window size. Minimum count, that means parameter specifies the minimum frequency count of words to be included in the vocab. If min count is 1, even the words will appear only once will be included in the vocabulary. Okay, one time appearance, I am going to create a vocabulary. Okay, that is the integer representation I have already told you. Okay, first you perform tokenization, then you create vocabulary, then you perform the vectorization. So unique word it is taking. One time appeared, then it's taking. Increasing this value will make the noise. Okay, so we are not going to do that. All right, then. Okay, threads, that means the processors, multi-core processors. Okay, and the next one is your SG1, that means skip gram, which predicts the context words based on the target. Okay, so that's what we are taking. This scriptgram model also to predict the context words. That means the words which looks like similar to the existing word. So that will be the context words. Okay, so which predicts the target word based on the surrounding context words. Continuous bag of वर्ड CBOW. सो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, एनएलपी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो एनएलपी में यूज़ होते हैं. ओके, तो यहाँ पर ये पैरामीटर्स थे फॉर वर्ड टू वेक्टर मॉडल, तो दैट्स व्हाट आई मेंशन. तो वेक्टराइजेशन कर दिया आपने, एंड हियर यू आर प्रिंटिंग, here you are printing word to vec model wv dot index to key. That means word to vec model means this is your model which is created by Gensim. WV means it,
you can access the word vectors associated methods for working with the model vocabulary. WV means word vectors. Index to key means it's a list that contains the words in a vocabulary of the word to vec model. So in word to vec model, I am having 1,82,131 words available. इतना बड़ा डेटाबेस है वर्ड टू वेक मॉडल का। ये बोल रहा है ना लेंथ निकाल लो आप, तो ये बोल रहा की इंडेक्स टू की, तो आप ये बता दीजिए कि इंडेक्स बता दो, इससे हमें पता चल जाएगा कि हाउ मेनी वर्ड्स दिस मॉडल डू हैव, मतलब इसके पास इतने शब्दों का वेक्टर है, बना रखा है इसने ऑलरेडी। सो 1,82,131 शब्दों का वेक्टर करके बैठा हुआ है, ये ट्रेंड है उन पर, ये बोल रहा है। सो इट विल लेंथ कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लिस्ट रिटर्न, ठीक है, दिस विल बी द टोटल काउंट ऑफ यूनिक। तो ऑब्वियसली है ना, रिपीटेड थोड़ी ना होंगे यार, यूनिक ही तो होंगे। तो इतने यूनिक वर्ड्स हैं इसके पास, इसके डेटाबेस में, जिनका वेक्टर्स इट इट डू हैव। ओके, कर रखा है इसने। सो बस पर्पस यही है, ये कह रहा है इट विल रिटर्न द इंटीजर दैट रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द वोकैब यूज इन द वर्ड टू वेक्टर द टोटल नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स एम्बेडिंग्स। तो हमें एम्बेडिंग चाहिए, अल्टीमेटली वेक्टर चाहिए, वो करके दे देगा आपको। अब आपको यदि निकालना है कि ये बांग्ला वर्ड है, इसका तुम मुझे वेक्टर बना के दे दो, तो ये देख लो, ये बना दिया इसने वेक्टर। दिस इज द वेक्टर। आपने, अच्छा ये जो वेक्टर है एक वर्ड की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ये, दिस इज अ वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यदि इफ यू आर गोइंग टू स्टडी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, यू शुड नो दिस थिंग, आना ही चाहिए, ठीक है, एम्बेडिंग आना ही चाहिए। एम्बेडिंग इज अ वेक्टराइजेशन, बस। तो आपने एक शब्द को वेक्टर में रिप्रेजेंट कर दिया, ये भी रैंडमली असाइंड होते हैं, ठीक है, वी डू रैंडम असाइनमेंट। नहीं तो मेरे पास ट्रेंड मॉडल है, तो वो अपनी कलाकारी कर लेगा, ठीक है, उसके पास किसी भी वर्ड का 1,82,000 वर्ड्स इट इज हैविंग, उनके वेक्टर इट इज हैविंग, तो बना लेगा वो अपने, ठीक है। आपने क्या बोला था इन दिस पर्टिकुलर केस, यू टोल्ड दैट कि आई नीड टू मेक अ वेक्टर, और आपने डिफाइन करा था कि साइज 100 का होना चाहिए। सो फॉर एवरी वर्ड 100 का वेक्टर बनेगा, साइज 100 का वेक्टर बनेगा। चाहो तो काउंट कर लो, 1 2 3 4। ओके, इन दिस लाइन वी आर हैविंग 4 एंट्रीज, और मुझे लग रहा है ये पूरी टोटल 25 एंट्रियां हैं, तो 25 इंटू 4 100 का वेक्टर बन गया ये। फॉर ये कोई वर्ड है बांग्ला का, इसका 100 का वेक्टर बना। कोई भी वर्ड को चेकआउट कर लो आप, एनी वर्ड यू कैन चेकआउट, ये सब 100 के वेक्टर हैं। और आपको यदि किसी का सिमिलर निकालना है, टॉप 10 किसी भी वर्ड का सिमिलर वेक्टर, मतलब जो उसी की तरह दिख रहा हो, तो ये भी निकाल देगा ये। और सिमिलैरिटी कैसे निकाली जाती है, सिमिलैरिटी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, वो कोसाइन सिमिलैरिटी पता है ना आपको, तो वैसे निकाली जाती है वो, टू वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग, कि आप किसी भी वर्ड को पहले तो इंटीजर टू मेक अ vocab एंड देन यू कन्वर्ट इट इनटू वेक्टर। वेक्टर का देख लो आप साइज वाइज क्या दे रहे हो, यहां मेंशन करा था 100, ठीक है, ये हो गया। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू वेक्टर्स, देन यू हैव टू परफॉर्म द डॉट प्रोडक्ट। इससे अच्छी मैथ्स तो कहीं हो नहीं सकती, इससे इजी मैथ्स कहीं हो नहीं सकती, ठीक है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली यूज इन अटेंशन मैकेनिज्म ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल लाइक जीपीटी, ठीक है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर के अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज किया गया सिमिलैरिटी वाला, ठीक है। और ये न्यू भी नहीं है, अपन कोसाइन सिमिलैरिटी रिकमेंडेशन सिस्टम्स के अंदर वी डू यूज करते ही हैं। तो उसने बोल दिया कि आप वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर लो, एंड डॉट प्रोडक्ट करने के बाद वट एवर बी द वैल्यूज, जो इसका वेक्टर जो होगा, और जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ड्स हैं उनका वेक्टर, दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा। एंड डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आई एम गेटिंग दिस मच वैल्यू। तो ऑब्वियस सी बात है ये सिमिलर है, टॉप 10 ये सिमिलर है, ठीक है। आपको इस वर्ड का देखना है टॉप 10 सिमिलर, तो इसका वेक्टर
dot product with rest other words vectors, and whoever are coming the highest values वो उसने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ये हो गया। अब ये भी मैंने बता दिया था आपको कि हमें टोकन करना है। ठीक है, टोकनाइजर है, फिट टू टेक्स्ट यानी हियर इट इज, यू आर गोइंग टू। तो आपको अभी ये सब तो डिफाइन करा गया उन्होंने, ये सब डिफाइन करा, ये बताया उन्होंने, ये एग्जाम्पल थे। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स जो अभी आपको बताया कि देखो भाई क्या होता है कि ये जो टेक्स्ट की लिस्ट है इसको अपन ने वेक्टराइज तो कर दिया। ठीक है, ऐसे वेक्टराइज करा एंड वी डिड प्रिंटेड फ्यू वर्ड्स की उनके क्या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, एंड सिमिलैरिटी भी हमने निकाल दी कुछ वर्ड्स की। और यहां से अब आपका डीप लर्निंग एल्गोरिदम इज गोइंग टू स्टार्ट। तो टोकनाइजर यू आर टेकिंग एंड देन जो टेक्स्ट लिस्ट है आप फिट ऑन टेक्स्ट कर रहे हो। फिट ऑन टेक्स्ट का मतलब ये है कि जो टेक्स्ट की लिस्ट बनाई है यू आर क्रिएटिंग द वोकैबुलरी ऑफ इट। ओके, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग द इंटीजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट। इंटीजर रिप्रेजेंटेशन करने के बाद आप उसका सिक्वेंस बना रहे हो, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, एंड सीक्वेंस जो बनेगा वो मैक्सिमम लेंथ के बराबर बनेगा। व्हाट यू हैव टेकन इज 100, द मैक्स लेंथ यू हैव टेकन हियर इज 100। ऊपर चेक करो आप, द मैक्स लेंथ यू हैव टेकन इट एज 100। तो ये कोड क्या, व्हाट द कोड इज सेइंग, क्या बताना चाह रहा है। अब ये हर किसी के पल्ले नहीं पड़ता ये सब, ये कोड। ठीक है, क्यों नहीं पड़ता बता रहा हूं, रुकिए। योर कोड इज सेइंग दैट कि आप सबसे पहले you are taking the tokenizer। so let us suppose you are having the sentences in Bangla language। मैं अभी इंग्लिश के तौर पे समझा रहा हूं। ऐसा कुछ है, my name is Nirmal, I am your teacher। तो वो क्या बोल रहा है, पहले टोकन करो। ओके, तो कॉमा 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 कॉमा, ये पहले वाले सेंटेंस के टोकन्स एंड दिस इज सेकेंड सेंटेंस के टोकन्स। फिर वो कह रहा है कि फिट ऑन टेक्स्ट। फिट ऑन टेक्स्ट का मतलब ये होता है दिस इज टोकन, नेक्स्ट इज फिट ऑन टेक्स्ट। फिट ऑन टेक्स्ट, तो फिट ऑन टेक्स्ट में बोल रहा है कि आप वोकैबुलरी क्रिएट करो। वोकैबुलरी में यू हैव टू कंसिडर द यूनिक वर्ड्स जो भी हैं। रिपीटेशन वाला नहीं लेंगे, नहीं तो अननेसेसरी फंसोगे, वो साइज बढ़ जाएगा वोकैबुलरी का। सो यू विल बी हैविंग एन आईडी, यू विल बी हैविंग अ वोकैब। सो आईडी 0 माय, 1 ये है नेम, ये है एस, ये है निर्मल, और इनको भी ले लो आप, आई एम योर टीचर, तो यहां पर वो उनका भी आ जाएगा। ओके, सो 4 5 6 7 यहां पर आपके वर्ड्स आ जाएंगे। वोकैब में करने के बाद वो कह रहा है कि आप इसको सीक्वेंस जो है फिट ऑन टेक्स्ट, देन वो कह रहा है कि आप इसको सीक्वेंस बनाइए, आप कन्वर्ट दिस इनटू सीक्वेंस। वो सीक्वेंस ऐसा बनाना है मैक्सिमम लेंथ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सो लेट अस सपोज अभी आई एम मेकिंग द सीक्वेंस, मैं बना रहा हूं सीक्वेंस, तो ऐसा बन रहा है। माई फर्स्ट सीक्वेंस विल बी 0 1 2 3, ये मेरा फर्स्ट सीक्वेंस है। देखिए, अब आप ये भूल जाइए कि वो माई नेम इज निर्मल है, नहीं, अब वो 0 1 2 3 है। वट एवर बी दीज वर्ड्स आर ना, अब मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा उसके इंटीजर से, तभी मैंने वोकैबुलरी बनाई है। सो नाउ इट विल बी 0 1 2 3। सेकेंड वाला जो सीक्वेंस है दैट इज ऑफ 4 5 6 7, वो ये है। दैट्स व्हाट यू आर क्रिएटिंग। ठीक है, यहां पर लेंथ है सीक्वेंस की 4 एंड देयर वी हैव टोल्ड दैट कि सीक्वेंस की लेंथ होनी चाहिए 800। दैट्स व्हाट वी हैव मेंशन, वहां मेंशन 800 करिए। ओके फाइन, ये करिए। अब देखना ये हो गया।
इसके होने के बाद चलो वो फिर वो कह रहा है भाई कि तुम ये वेक्टर मॉडल की लेंथ ये तो निकाल चुके हैं, वो कैप साइज अपने पास 1,82,000 का था, छोड़ो उसको, तो वो तो कर दिया। ठीक है, अब वी आर हैविंग फेक एंड रियल, ये लेबल है, फेक और रियल है। ठीक है, फेक न्यूज एंड द रियल न्यूज, दैट्स व्हाट वी आर हैविंग इन फॉर्म ऑफ लेबल। ठीक है, ऑल राइट। एंड देन व्हाट आई डिड इज आई परफॉर्म द स्प्लिटिंग ऑफ द डेटा। मैंने स्प्लिटिंग कर लिया डेटा का। तो ये मेरा सीक्वेंस, ये मेरा टारगेट लेबल, आई स्प्लिटेड माई डेटा, ठीक है, इनटू ट्रेनिंग एंड द टेस्टिंग। बट देर इज एन इशू, एक बात है, आपका जो योर डेटा इज ना, योर डेटा इज अनबैलेंस्ड डेटा। इफ यू चेक, योर डेटा इज अनबैलेंस्ड। So I did perform the splitting here. Okay, but I want to resample my data. So what I did is I created a data frame of X train, Y train, and here I perform the resampling of the data. Okay. So if this is the majority, this is the minority, so I am making minority equal to the majority. That's what I am making. सो माइनॉरिटी को अप सैंपल कर दो आप और उसको मेजॉरिटी के बराबर बना दो। ओके, तो अब आपका जो डेटा है एक्स ट्रेन वाई ट्रेन ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, खास करके वाई ट्रेन तो मुझे ट्रेनिंग को ही बैलेंस करना रहता, टेस्टिंग को मैं नहीं करता। ओके फाइन, ये दिस इज द लॉजिक विच यू हैव टू यूज। सो यू हैव क्रिएटेड द सीक्वेंस, दिस इज व्हाट यू हैव गेटिंग, सीक्वेंस बन के तैयार है, सीक्वेंस is ready, and then you have splitted your data in training and the testing। ठीक है, तो जो ट्रेन वाला है ट्रेनिंग, उसको आई एम परफॉर्मिंग बैलेंसिंग, उसको बैलेंस कर रहा हूं। दैट मीन्स जो वट एवर बी द माइनॉरिटी क्लास आई एम मेकिंग इक्वल टू द मेजॉरिटी क्लास, ये कर रहा हूं मैं, माइनॉरिटी को मेजॉरिटी कर दो। ऑब्वियसली डुप्लीकेट्स क्रिएट हो जाएंगे, यही होगा। ओके, तभी बराबर करोगे, रीसैम्पलिंग का मतलब ये डुप्लीकेट बना दोगे। अब बराबर तो करना है ना, चाहे डुप्लीकेट हो, नया कहां से लाऊं। ठीक है, तो बराबर कर दिया। एंड आफ्टर दैट हियर आई क्रिएटेड माई मॉडल, आई एम टेकिंग LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, और सिक्वेंशियल डेटा को ट्रीट करने के लिए LSTM लिया जाता है। एंड यू हैव ऑलरेडी सीन दिस LSTM इन द प्रीवियस NLP project also, long short term memory. And this long short term memory, it came आफ्टर RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको प्रीवियस क्लास के अंदर। RNN ही द फर्स्ट आर्किटेक्चर which is used to process the sequential data। Okay, which is used to process the sequential data। RNN was the architecture, और रिकरेंट ही कर रहे थे हम वो ताकि सीक्वेंस मेंटेन रहे। एंड आर्किटेक्चर ऑफ RNN वाज समथिंग लाइक दिस, ये था। ओके, आपको कई बार बता भी चुका हूं मैं, वो रिपीट करता है, लूप बैक करता है। ओके फाइन, सो जब तक सीक्वेंस कंप्लीट नहीं होगा वो लूप बैक करेगा। व्हेन द सीक्वेंस इज कंप्लीटेड तो वो फिर फॉरवर्ड कर देगा नेक्स्ट लेयर को। सो इफ आई से कैट मैट रैट, तो पहले कैट जाएगा, फिर वो ओके लूप बैक कर जाएगा। और कैट का भी भाई, कैट का भी ऐसा नहीं है, कैट का वेक्टर क्या होगा 1 0 0, मैट का होगा लाइक 0 1 0,
रैट का होगा 0 0 1। ऐसे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होंगे इनके। ओके, सो इफ यू वांट टू गेट इनटू लार्ज लैंग्वेज मॉडल, पहले आपको ये आनी चाहिए। ठीक है, बाकी तो फिर बहुत लंबी कहानी है, आई डोंट नो अभी आपका क्या सिनेरियो है। ठीक है, बट इफ यू वांट टू गेट इनटू द एलएलएम्स यू हैव टू नो दिस थिंग। ओके, तो ये आरएनएन है। एलएसटीएम, इन केस ऑफ एलएसटीएम, आरएनएन का ड्रॉबैक था वैनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट, दैट्स आल्सो आई टोल्ड। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम वो इसलिए था, जैसे जैसे सीक्वेंस बढ़ेगा ना तो रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग में क्या होता है, वो ग्रेडियंट मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है अपडेट की, वेट अपडेट की, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल बाय डेल डब्ल्यू, दिस इज द बेसिक इक्वेशन टू अपडेट द वेट। और ये जो ग्रेडियंट्स हैं वो एक के बाद एक मल्टीप्लिकेशन में दे विल कम, सो ये जीरो हो जाता है। और यदि ये जीरो हो जाएगा तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू लगभग हो जाएगा। तो वेट अपडेट हो नहीं रहे हैं और तुम ट्रेनिंग करते चले जा रहे हो, तो कोई सेंस थोड़ी ना है। क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, पैरामीटर अपडेट ही तो ट्रेनिंग होती है। और पैरा देर इज नो मशीन लर्निंग ट्रेनिंग, क्या, व्हाट इज मशीन ट्रेनिंग, पैरामीटर, you need to update the parameters, that means you have to optimize, okay, you have to optimize the value of parameters so that it should be in such a way when I put any unseen value in that particular model, जिसके जो पैरामीटर्स हैं वो सेट हो गए हैं, ठीक है, तो आपका वो प्रिडिक्शन निकाल के दे दे, it can give the prediction. So the machine learning or deep learning or whatever kind of training is, that's based upon this parameter, वो पैरामीटर ट्रेनिंग ही होती है। ठीक है, तो ये लफड़ा फंस गया। और ये होने के बाद फिर अब नेक्स्ट तो गजब ही खेल खेला उन्होंने, एलएसटीएम दे दिया, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। एलएसटीएम मतलब सीधे वो एक आरएनएन को मॉडिफाई करते हुए they made an architecture long short term memory, तो लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है, टर्म भी मेमोरी। तो here I think I have also mentioned in the previous class, that is it will look out for short term and long term dependency, okay, dependencies। ठीक है, ये वो पता करेगा, डिपेंडेंसीज वो परफॉर्म करेगा, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिपेंडेंसीज का पता लगाएगा वो। शॉर्ट टर्म डिपेंडेंसी मीन्स द वर्ड्स विच आर नियर बाय, लॉन्ग टर्म मीन्स द वर्ड्स विच आर फार अवे। तो मेरा एक वर्ड है वो दूसरे वर्ड से कैसे डिपेंडेंट है किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर, ये पता लगाने का काम है एलएसटीएम में। ठीक है, एंड ये आर्किटेक्चर ऑफ एलएसटीएम आई थिंक आई हैव मेड प्रीवियसली ऑल्सो in the last project too, where we have used the LSTM। तो शॉर्ट टर्म डिपेंडेंसी होती है हिडन स्टेट एच टी माइनस वन, लॉन्ग टर्म होती है सी टी माइनस वन, दैट इज सेल स्टेट। सो दिस इज हिडन स्टेट एंड दिस इज सेल स्टेट। ठीक है, मेमोरी है ये दोनों, वो नाम ही वही है ना, अलगोरिदम का नाम भी तो यही है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो मेमोरी है ये। एंड मेमोरी में उन्होंने ये कहा, आरएनएन क्या करता था, सब याद रखता था, एवरीथिंग इट रिमेंबर। एलएसटीएम में दे टोल्ड दैट नहीं भाई, सारी चीजें याद नहीं रखने का, क्या करोगे यार सब चीज याद रख के, ठीक है, डोंट रिमेंबर एवरीथिंग, जस्ट रिमेंबर दोज विच आर इंपॉर्टेंट, एंड एज द डे पास फॉरगेट। For example, if something is asked to you, what's happened 10 or 20 years back, then there's a very light memory. You'll forget what's happened 10, 20 years back. Only the special event, else nothing. ओके, सो ये भी यही बोल रहा है कि जो पुरानी है, जैसे अपन कहानी में आगे बढ़ रहे हैं, आगे की बातें जो है उसके हिसाब से आप जो करंट उनको याद रखें, पुरानी जो खास है बस उसको याद रखना।
ओके, बाकी भूल जाओ। ओके, तो इन केस ऑफ LSTM we do have three gates in LSTM. We are having forget gate, we are having input gate, and we are having output gate. These three gates we are having: forget gate, input gate, and the output gate. Forget gate मैंने आपको बताया था, what I want to keep I will, what I don't want to I forget. Input, that is the new input which you give to the model. और आउटपुट में आपको आउटपुट प्रोड्यूस करना है, द नेक्स्ट सेल स्टेट एंड द हिडन स्टेट दैट्स यू आर गोइंग टू गेट इन द आउटपुट। तो आप फॉरगेट में दोगे प्रीवियस सेल स्टेट एंड हिडन स्टेट, ये फॉरगेट में जाएंगी। यहाँ से होते हुए इनपुट में नया इनपुट भी आएगा। ओके, दैट विल बी द न्यू इनपुट विल बी गिवन हियर, आएगा। एंड फिर ये यहाँ से होते हुए आउटपुट से CT, दैट इज द नेक्स्ट सेल स्टेट एंड नेक्स्ट हिडन स्टेट यू आर गोइंग टू गेट, ये मिलेंगे आपको। इसका आर्किटेक्चर भी अच्छा है। अब तो खैर कोई बात ही नहीं, पढ़ाते पढ़ाते तो हो गया, मुझे रट गई ये सब। CT-1, HT-1, ठीक है, और ये HT-1, दैट मीन्स सेल स्टेट, हिडन स्टेट। और फिर यहाँ से भाई हमारा आएगा इनपुट, ठीक है, यहाँ से हमारा इनपुट आएगा एक्सटी। टी टाइम स्टेप होता है ना, कंफ्यूज मत हो ना, टी इज अ टाइम स्टेप, ठीक है, यहाँ टाइम स्टेप होते हैं। फाइन, सो एट अ पर्टिकुलर टाइम स्टेप वी आर गिविंग इनपुट टू द मॉडल। सो टाइम स्टेप T=1, T=2, T=3। तो आप हर एक टाइम स्टेप पर एक आप इनपुट दे रहे हैं, एवरी वर्ड यू आर गिविंग। और जब सीक्वेंस खत्म हो जाएगा तो बात खत्म है, फिर वी आर गोइंग टू टेक द अनदर सीक्वेंस, वो ले लेंगे, फिर उसके अलग अलग एक एक टाइम स्टेप पर एक एक वर्ड देते चले जाएंगे। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो यहाँ ये इनपुट गया यहाँ पर, और फिर वी डू हैव अ सिग्मॉइड फंक्शन। ओके, सिग्मॉइड फंक्शन है यहाँ, एंड जो सिग्मॉइड फंक्शन है, वट एवर बी द आउटपुट आई एम गोइंग टू गेट ना, वो मैं यहाँ पर इसको दे दूंगा, ठीक है, हियर आई एम गोइंग टू गेट। तो ये XT, ओके, XT और HT, ये दोनों यहाँ पर डॉट होते हुए गए, सिग्मॉइड के अंदर गए, एंड हियर आई एम गेटिंग द आउटपुट एज फॉर एग्जाम्पल FT, ये मुझे मिला, ठीक है। तो इतना जो पोर्शन है, दिस मच पोर्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉरगेट गेट। ये कहानी भाई आगे फिर बढ़ती है, यही, ओके, ये कहानी आगे फिर बढ़ रही है। अगेन आई एम हैविंग अ सिग्मॉइड फंक्शन, यहाँ पे सिग्मॉइड है, ठीक है, और यहां से एक आउटपुट मिलेगा मेरे को इधर। यही कहानी आगे फिर यहां बढ़ रही है, ओके। एंड हियर आई एम हैविंग, हियर आई एम हैविंग 10H एक्टिवेशन फंक्शन। whatever be the output I am going to get here in 10H, उसको मुझे क्या करना है, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करना है। आई नीड टू परफॉर्म द प्रोडक्ट, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में आएगा वो उसके साथ, एंड देन यहाँ पर इसे टैप करना है, आई नीड टू ऐड, दिस इज द कॉन्कैटिनेशन। ओके, तो ये जो सेल स्टेट है, ये वॉट एवर बी आई एम गेटिंग, और यहाँ से वॉट एवर आई एम गेटिंग ना, उसका कॉन्कैटिनेशन आई नीड टू डू। यहाँ पर एंड हुआ आपका, दिस इज फॉरगेट गेट, दिस इज इनपुट गेट, ये खत्म हुआ। एंड देन फिर अपन आगे बढ़े, अगेन ये चीज ये आगे फिर वापस बढ़ेगी। हियर अगेन आई एम हैविंग सिग्मॉइड, हियर अगेन आई एम हैविंग सिग्मॉइड, एंड वॉट एवर बी द आउटपुट आई एम गेटिंग हियर फ्रॉम द सिग्मॉइड, ये जो ये सेल स्टेट है CT, इसका ये पोर्शन यहाँ पर लोगे, उसका 10H परफॉर्म करोगे, हाइपरबोलिक 10 ये परफॉर्म करोगे, एंड वॉट एवर विद आउटपुट यू आर गोइंग टू गेट, उसका और ये 10H इन दोनों का यू हैव टू परफॉर्म द डॉट प्रोडक्ट, ये आपको करना है। एंड द आउटपुट विच यू विल गेट, दैट इज HT,
ये हिडन स्टेट आएगी, नई हिडन स्टेट है, और बाकी जो सीटी थी वो आगे बढ़ जाएगी। ये आपका एलएसटीएम का डायग्राम है, आर्किटेक्चर है। एक समय था जब मैं खुद, हाँ, वो करते करते तो हो गया। अब आप मुझसे कभी भी बोलो, मैं बना कर दे दूंगा। ठीक है, तो ये आपका एलएसटीएम का आर्किटेक्चर है, एंड दिस इज योर आउटपुट। ठीक है, फाइन। सो वी आर हैविंग दीज 3 गेट्स। ओके, गॉट इट। और इनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। फाइन, एवरी इज हैविंग ना मैथमेटिकल इक्वेशन। और अभी नया जो आर्किटेक्चर आया है, मतलब इसका अपग्रेडेड है, एक्सएलएसटीएम, उन्होंने कोशिश करी है कि ये एलएसटीएम और आरएनएन को वो भुलाना नहीं चाह रहे, दे डोंट वांट टू फॉरगेट। तो वो चाह रहे हैं कि हम कैसे ना कैसे यूज करके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो आर्किटेक्चर होते हैं उसमें पैरेललिज्म होती है, ट्रांसफॉर्मर है, एनकोडर डिकोडर है, वो कोशिश कर रहे हैं कि इसी आर्किटेक्चर को अब बढ़ा के और अच्छे से प्रेजेंट करके हम क्या यूज कर सकते हैं फॉर टेक्स्ट जनरेशन। तो इस पर रिसर्च है, पेपर्स हैं, और उन्होंने एक्सपोनेंशियल गेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करा है। एक्सपोनेंशियल गेट ये यूज करें। यहां पर मैंने सिग्मा लिखा है ना, उन्होंने एक्सपोनेंशियल रखा है, ई की पावर में। एक्सपोनेंशियल गेट है यहां भी। ओके, हर जगह जहां ये सिग्मा है ना वहां एक्सपोनेंशियल गेट है। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू परफॉर्म। और भी चीजें, नॉर्मलाइजर भी लगाया उन्होंने। ओके, क्योंकि एक्सपोनेंशियल करोगे किसी भी वैल्यू का तो हाई आएगी, उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, तो नॉर्मलाइजर भी लगाया उन्होंने। ऐसे कुछ चेंजेस करे हैं। ठीक है, तो एक्सेलेस्टियम द आर्किटेक्चर विच इज गिवन ना, वहां पर दो दो कंपोनेंट बनाया उन्होंने। एक बनाया है एस एल एस टी एम एंड अनदर दे हैव मेड एम एल एस टी एम। दीज टू कंपोनेंट्स दे हैव डिजाइन, दिस इज स्केलर एंड दिस इज मैट्रिक्स। ये मेमोरी अपडेट है, और इनकी स्टैकिंग करी है पैरेललिज्म प्रोवाइड करने के लिए। एस 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 एम एम एम, क्योंकि parallel processing large language models do perform. So similarly they are also looking forward to perform the parallel processing। ये करने के लिए उन्होंने ये कोशिश करी है, और अटेंशन मैकेनिज्म लगाया है यहाँ पे। ठीक है, जो ये अभी यहाँ पर कोई अटेंशन फटेंशन नहीं है, यू आर कोई अटेंशन नहीं है यहाँ, लेकिन अटेंशन मैकेनिज्म लगाया उन्होंने यहाँ पे। तो पैरेललिज्म भी करा, मेमोरी अपडेट भी करी, अटेंशन मैकेनिज्म भी लगाया। दैट मीन्स दे आर, वो कोशिश ये करी है उन्होंने कि हम एलएलएम के बराबर पहुंचे। ड्रॉबैक यही है सीक्वेंस लेंथ वाला। अभी ये कभी ड्रॉबैक है, सीक्वेंस लेंथ, क्योंकि भाई सीक्वेंस लेंथ बढ़ेगी, अभी भी है तो रिकरेंट ही ना, वो अभी भी रिकरेंट नेटवर्क ही है वो। ठीक है, तो सीक्वेंस लेंथ अभी भी ड्रॉबैक में उन्होंने मेंशन कर रखा है। देखेंगे इसको आगे, हम रिसर्च को कर रहे हैं, बढ़ाएंगे इसको, समझेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, फाइन। तो ये बात है, एलएसटीएम आर्किटेक्चर यहाँ यूज करा है हमने। फाइन, ओके। तो ये आर्किटेक्चर बना दिया हमने, लर्निंग रेट ले लिया 0.00001, एम्बेडिंग डायमेंशन ये ले लिया 100 का। अब देखिए क्या है, एम्बेडिंग लेयर क्या करती है, सुनो। अब डेटा आपका जो है, you are taking sequence, okay, you are taking sequence 1, you are taking sequence 2, you are taking sequence 3, it will pass through embedding layer। ठीक है, एम्बेडिंग लेयर से जाएगा। एम्बेडिंग लेयर क्या करती है मालूम है? एम्बेडिंग लेयर डायमेंशन कम करती है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन। वो कैसे करती है मैं बताता हूँ। एम्बेडिंग क्या करेगी, अभी एनी ऑफ द वर्ड्स विच आर सिमिलर, तो उनको वो एक ही वेक्टर असाइन कर देगी। दैट्स व्हाट इट विल डू। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कई बार बोलता हूँ किंग क्वीन, ओके, किंग एंड द क्वीन, दीज टू आर सिमिलर, क्योंकि वो दोनों रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं। ओके, रॉयल को बिलोंग करते हैं, तो वो उनका वेक्टर जो है ना वो एक ही मार्क कर देगी, किंग एंड क्वीन का वेक्टर क्लोज कर देगी वो। ओके, सो ये किंग का वेक्टर है,
दिस इज क्वीन का वेक्टर, सो किंग एंड द क्वीन ये क्लोज कर देगी, या हो सकता है सेम वेक्टर रिप्रेजेंट कर दे उन्हें। इट विल मार्क सेम वेक्टर फॉर किंग एंड द क्वीन बोथ। ठीक है, तो एम्बेडिंग हमने बोला कि भाई तुम इनपुट तो दे रहे हो 800 का, वो तो हमको पता है। आप ध्यान देना, एम्बेडिंग का साइज मैंने लिया है 100, तो आप इनपुट दोगे, इनपुट आपका जो है, इनपुट है आपका 800 का। ठीक है, इनपुट आपका है 800 का। इनपुट डायमेंशन जो है वो कैप साइज, तो भाई वो कैप साइज तो मेरी, वो कैप साइज आपने देखा था 1,82,000, भाई इतनी बड़ी वो कैप साइज थी, वो कैप साइज तो काफी बड़ी थी। तो आपकी एम्बेडिंग लेयर पर भाई इतने न्यूरॉन हैं, और आपने 800 का इनपुट इतनों को दिया, और आउटपुट में आपको 100 मिला। ये है वो खेल, तो अच्छो फिर समझ में नहीं आता अच्छो अच्छो को। दिस इज द इनपुट, this is the number of neurons vocab size, and this is the output embedding. That's what you are getting. ठीक है, ये आपको मिला। उसके बाद फिर आप LSTM लेयर लगाओ, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, देन यू विल अप्लाई LSTM। ठीक है, ये रहा LSTM 64 यूनिट, 64 न्यूरॉन ले लिए LSTM के अंदर। देन अप्लाई ड्रॉप, आर्किटेक्चर में दम नहीं है, आर्किटेक्चर छोटा ही है। Okay, so embedding LSTM dropout and dense layer. वो sigmoid, I need to perform classification ना, तो I took dense 1 unit 1 neuron, ये ले लिया मैंने classification करने के लिए। ठीक है, बस कर दिया। So we are applying binary cross entropy here because this is a binary classification. Okay, and बस देख लो आप, ये आर्किटेक्चर डिस्प्ले भी करा दिया मैंने यहाँ पर। दिस इज द आर्किटेक्चर। ठीक है, ये आपका जो बनता है मॉडल का, तो आप उसको वो भी कर सकते हो। प्लॉट मॉडल करके एक लाइब्रेरी होती है, तो वट एवर बी द आर्किटेक्चर ना यू हैव बिल्ड, जो लेयर्स आपने करी ना वो सब बना के दे देगा, और ये चीज़ अपन रिसर्च पेपर में चिपका देते हैं। वी डू यूज दिस आर्किटेक्चर इन आवर रिसर्च पेपर, ये जो बनाया है। और यहाँ सेव कर सकते हो आप इसे, देखो ना, प्लॉट मॉडल, प्लॉट मॉडल PNG। मैं 1 मिनट बता रहा हूँ आपको, ये आप जब आउटपुट देखोगे ना, ये देखो आउटपुट में होना चाहिए, आउटपुट में अभी आप रन कर चुका हूँ मैं इस कोड को, अभी वापस से वो, क्योंकि आई वॉज स्टैटिक, आई एम नॉट वर्किंग एनीथिंग, तो वो कह रहा है वापस से रन करो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो आर्किटेक्चर, ये वाला, इसको डाउनलोड कर लेना। यू कैन पुट इट इन योर रिपोर्ट्स, इन योर प्रोजेक्ट से कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मॉडल को ट्रेन करा विद बैलेंस्ड डेटा 10 इटरेशंस तक करने के बाद आई गॉट 97% एक्यूरेसी इन ट्रेनिंग, 63% इन वैलिडेशन। सीधी सीधी बात है भाई, मॉडल ओवरफिटेड है। आई गॉट दिस मॉडल एज ओवरफिटेड मॉडल। अब भाई ऐसा है कि आर्किटेक्चर में बदलाव करो, जस्ट चेंज द आर्किटेक्चर, और करना पड़ेंगे आपको बदलाव आर्किटेक्चर में। ठीक है, बिकॉज दिस इज ओवरफिटिंग। ट्रेनिंग 97, वैलिडेशन 63, ओवरफिटिंग। This much gap in the accuracies is clearly indicating that your model is overfitted. Okay, so either I need to apply a few more layers like batch normalization, I need to increase the dropout. Okay, यहाँ dropout 0.3 लिया है मैंने। ठीक है, मुझे उसको बढ़ाना चाहिए, 0.5 करना चाहिए। बैच नॉर्मलाइजेशन ऑल्सो लेयर आई कैन टेक, रेगुलराइजेशन टेक्निक्स ऑल्सो आई कैन अप्लाई। मतलब मेरा मॉडल अभी पैटर्न समझ नहीं पा रहा। ट्रेनिंग अच्छी है, एक्यूरेसी भी इतनी, ट्रेस वो भी इतनी बुरी नहीं है 63, लेकिन मैं ओवर फिटिंग हो रहा है। हो सकता है एक्टिवेशन फंक्शन 10H को लेकर भी उसको थोड़ा सा संशय हो यहाँ पे।
10h, अच्छा 10h लिया है मुझे बैच Sir, नॉट। I want to ask one thing. हाँ, यस प्लीज से। Sir, can you come to that सी result 10h, match, हाँ हाँ result part? हाँ, 10h एक्टिवेशन फंक्शन एक्चुअली No, ये, no, no, हाँ sir, यस, not manage. That output we saw there, no, that means loss, validation, everything. Can you skip that one? Come to विच that. पार्ट वेयर, Output, output. आउटपुट, Yeah, yeah. Actually, output. Actually, I always have the confusion. What I'll tell you. Just come, just a little bit scroll down. हाँ Yeah, हियर, little down. Down. No, no. There we have seen. No, that means हाँ हाँ accuracy, validation score, everything there. That one, that one. हाँ Yeah, हाँ, yeah, yeah, yeah. ओके हियर, Yeah. Actually, ओके, sir, here that means this loss. That means which is हम्म 0.6928. हम्म, Is it 69 percentage or it is normal value? It is 0.6. व्हाट परसेंटेज यू आर सेइंग, That loss is हाँ saying हाँ 0.6928. हाँ हाँ, Is did it mean it is 70% loss or it is only a value 0.7 it will be? see, loss, what we are taking, there is a proper formula by the help of which loss are calculated. And we are considering binary cross entropy. Okay, and let me again help you in understanding the loss. Okay, fine. No, sir. One thing, is it in a percentage display format or it is a normal just one decimal value? It's a decimal value, but the calculation is being performed in this way. It's a entropy. Log loss. It's a Yeah. entropy. Yes, yes, yes. It's a That I entropy. know. Yeah. है Actually, ना? that is my doubt. It is a percentage format or it is just a decimal format? It's a decimal, Uh, it's an entropy like this way. It's a cross entropy, na? Binary cross okay. entropy. So Yes, yes. Then it is entropy, fine. entropy we do take minus P log P, where P is the probability. है ना? P is the probability. Cross entropy is minus P log Q. That means we are having two distribution, P and Q. Let us suppose P is your actual and Q is predicted. That is the outcome. And here we are having fake and the real news. Okay. So let us suppose we are having real and fake. Here also I am having real and fake. For example, the value of real is 1, fake is 0 for a particular news. My model will predict, my model will give the, what it will give? It will give probability zero point 0.8. Zero point 0.8 is the probability. Fake it will give zero point 0.2. So how the loss is calculated? How loss is calculated? Loss is calculated by using this formula minus p log q. That's what it is showing. तो ये होगा 1 log, ऐसा होगा -1 log of 0.8 -0 into log of 0.2। तो जो आपको वैल्यू आ रही है ना वो ये आ रही है, ये 0.69 जो आप अभी मुझसे पूछ रहे हो ना, दैट्स द वैल्यू, Okay, okay. ये है वो Thanks. वैल्यू, दैट्स अ लॉस। अच्छा वो तो क्या करता है, वो है, वो कॉस्ट फंक्शन है, वो ओवरऑल लॉस निकालता है। दैट मीन्स फॉर एवरी डेटा पॉइंट, हर एक डेटा पॉइंट पर लॉस आते हैं, फॉर एवरी डेटा पॉइंट द लॉस कम्स, है ना? सो आपका, ये आपका डेटा सेट है, ओके, एंड दिस इज द लॉस, दिस इज द लॉस फॉर अ पॉइंट, ये इस पॉइंट का ये लॉस है, इस पॉइंट का ये लॉस है, इस पॉइंट का ये लॉस है, तो वो तो समीशन करता है पूरा। तो आप जो देख रहे हो ना, दैट इज अ समीशन ऑफ ऑल द लॉसेस, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, ऐसे करके वो बता रहा है हर एक इटरेशन में यही होता होगा, इन एवरी इटरेशंस, है ना? सो वी आर ट्रेनिंग अवर मॉडल फॉर 10 इटरेशंस। सो ये एक इटरेशन कंप्लीट हुआ, 114 स्टेप्स उसने ले ली करने के लिए, वो डेटा के डिवीजन के ऊपर है, एंड 0.69 इट्स कैलकुलेटिंग। ठीक है, ये उसने निकाल दिया, फिर वापस से चला अगेन,
ठीक है, वापस से चला एंड फिर ये एक्यूरेसी आई एंड ये लॉसेस उसके अगले स्टेप पर आए। ठीक है, सो व्हाट यू आर आस्किंग मी ना, हाउ द लॉस, तो ये लॉस ऐसे निकल के आए। ओके, फाइन। और ये मैं बेसिक अपने मशीन लर्निंग में बताता हूँ, एंड दिस कॉन्सेप्ट कम्स अंडर इंफॉर्मेशन थ्योरी। ओके, इंफॉर्मेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पर ही पढ़ते हैं अपन क्रॉस एंट्रोपी। ओके, एंड बाइनरी क्लासिफिकेशन था तो ऐसे हमने बना लिया। सो दिस इज द स्कोर आई एम गेटिंग, एंड इसका फिर प्लॉट प्लॉट बना लिया। मॉडल एक्यूरेसी ट्रेनिंग का तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वैलिडेशन नहीं हो पा रहा। ओके, वैलिडेशन तो 70 से नीचे ही रहा, इट्स लेस देन 70। हाँ, लॉसेस ट्रेनिंग के गिरे हैं, लेकिन वैलिडेशन के इंक्रीज हो गए। ऑब्वियसली इट्स एन ओवरफिटेड मॉडल, दिख रहा है वो। कोई बात नहीं, फिर आर ओ सी, ए यू सी कर्व वगैरह वट एवर इट तो बना दिया, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वगैरह जो बनता ही है क्लासिफिकेशन पे। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो देख लो, कोई इशू नहीं है। देन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह ये इंपॉर्टेंट है। सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ऑल्सो आई प्रिपेयर्ड। सो फेक के लिए 710 इट कैलकुलेटेड, बट 198 में उसने गड़बड़ कर दी, मिस्टेक कर दिया। इन 198 उसने फेक फॉल्स पॉजिटिव है, दिस इज ट्रू नेगेटिव, दिस इज फॉल्स पॉजिटिव, और यहाँ पर फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू पॉजिटिव, तो ये गलतियां कर रहा है वो। सो 24% ट्रू नेगेटिव, 6.81% फॉल पॉजिटिव, 29% फॉल नेगेटिव एंड 39% ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज ही मेंशन कर दिए। यू वेरी वेल नो अबाउट दिस थिंग, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, TPTN, FPFN। ओके, तो ये बनाया है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है। आई वॉज एबल टू अचीव एक्यूरेसी ऑफ 63%। ठीक है, जो स्ट्रगल हो रहा है उसका वो यहाँ पर देखिए, प्रिसीशन फेक का कम प्रिसीशन आ रहा है, रिकॉल रियल का कम आ रहा है। एनी हाउ ये कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, हमें जो रिजल्ट चाहिए वो बैलेंसिंग हिसाब से चाहिए, वो बैलेंस नहीं हो पा रहा। ओके, एनीवेज, बाकी फिर प्रिडिक्शन भी करा। मॉडल मॉडल ट्रेन होने के बाद यू कैन गिव अ बांग्ला टेक्स्ट एंड यू कैन अप्लाई द प्रिडिक्शन, वो दे रहा है रिजल्ट, न्यूज इज रियल और न्यूज इज फेक, वो दे रहा है। ऐसी बात नहीं है, हमने पूरी कोशिश करी है। ओके, कुछ बुरा इतना भी नहीं है बुरा। ठीक है, वी आर एबल टू परफॉर्म। तो बांग्ला न्यूज पे आपने रियल एंड फेक का प्रोजेक्ट बना दिया। ठीक है, दैट्स व्हाट यू डिड हियर। ओके, हाँ ठीक है देवेश, थैंक यू। तो अभी तक तो इंग्लिश को रियल एंड फेक क्लासिफिकेशन कर रहे थे, पहली बार एनी अदर लैंग्वेज देन द इंग्लिश हमने करा। ठीक है, ऑलराइट, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे की प्रिडिक्शन हो रहा है। फिर मुझे लगा कि यार एक काम करता हूँ, LSTM तो थोड़ा सा धोखा दे रहा है, बाई LSTM लगा लेता हूँ। लेट मी यूज बाई डायरेक्शनल लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो आर्किटेक्चर वो पूरा वैसे ही है, यहाँ पर मैंने बाई डायरेक्शनल यूज करा है। ठीक है, दैट मीन्स हो सकता है ना LSTM कंटेक्स्ट समझ नहीं पा रहा अभी, यूनिडायरेक्शनल है, इट इज ट्रेवर्सिंग द टेक्स्ट फ्रॉम वन डायरेक्शन ओनली, वो ऐसे ही चल रहा है बस। LSTM LSTM ऐसे ही चल रहा है। हमने सोचा यार वो अभी स्ट्रगल कर रहा है ना, इट इज स्ट्रगलिंग समझने में, वो डिपेंडेंसीज कैप्चर, इट वाज अनेबल टू डू दैट। सो हमने बाई LSTM की कोशिश करी। हमने बोला कि भाई तू इधर से भी चल ले और इधर से भी चल ले, whatever be the content written, you traverse from both the direction, at least you can understand the dependencies, आप कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं, बाय डायरेक्शनल भी लगाया, लेकिन मुझे उतना फायदा नहीं मिला यहाँ पर भी बाय डायरेक्शनल लगाने के बाद। अब आपको कुछ सजेशन है, ये एक्टिवेशन फंक्शन को ज़रा देखना, आप इसको चेंज करना, एक्टिवेशन फंक्शन। और अच्छा, एक्टिवेशन लगाने का एक मतलब ये है कि मैं वैसे ही वैल्यूज को नॉर्मलाइज कर रहा हूँ। 10H का मतलब यही होता है -1 टू +1, 10H की जो वैल्यू होती है ना वो -1 टू +1 के बीच में होती है। तो वैसे ही आपने नॉर्मलाइज कर दिया वैल्यूज को, और फिर आपने ड्रॉप आउट भी लगा दिया, यानी ओवरफिटिंग से बचने के लिए। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन इंक्रीज द ड्रॉप आउट, मैं ड्रॉप आउट की वैल्यू बढ़ाऊंगा,
यहाँ एक्टिवेशन फंक्शन को चेंज करके कोई दूसरा लगा के, होपफुली शायद मैं कोशिश करूँ, आपको सजेशन है, आप यहाँ लगा के देखिए, सिग्मॉइड लगा के देखिए और नीचे अलग से बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर ऐड कर देना। जस्ट ट्राई टू डू दिस थिंग। देखिए अपना आर्किटेक्चर चेंज करके, तो ओवरफिटिंग से हम बच सकें। लर्निंग रेट, यदि फिर भी कुछ इशू आ रहा है तो लर्निंग रेट थोड़ा सा बढ़ा दो, इट्स 0.0001, हालांकि जितना कम रहे उतना अच्छा। द लर्निंग रेट एज मच एज लेस, तो इट्स गुड। माई मॉडल वो लर्न करता है, ठीक है, अच्छा है। फिर भी थोड़ा सा आप चाहो तो उसको इंक्रीज कर सकते हो, इट विल बी लाइक 0.001, एक कोशिश ये कर लेना। ठीक है, तो इतना अपन कुछ सजेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर अभी, टू अवॉइड ओवर फिटिंग, एंड ये भी चलाया है। एंड फिर आप देखिए, आई एम गेटिंग एक्यूरेसी 65 इन बाई एल एस टी एम। तो वो 63 तक था, ये 65 तक आया, ज़्यादा अंतर नहीं है, नॉट टू मच डिफरेंस। ट्रेनिंग तो अच्छी चल रही है 97, बट वैलिडेशन ना वो इम्प्रूव नहीं हो रहा, 65 तक हम पहुंच पाए, अगेन द मॉडल इज ओवर फिटेड। एक अटेम्प्ट है हमारा, इसको भी प्लॉट करा मैंने, और यहाँ पर प्रिडिक्शन करके कुछ प्लॉट प्लॉट बना दिए, एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ पर रख दी मैंने, एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी लगा दी। हियर आई एम एट 65% एक्यूरेसी, इतना मैं कर पाया हूँ। ठीक है, अब ये तो एफर्ट थी मेरे साइड से, सिर्फ पूरा बांग्ला को, मतलब ये पूरा टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का प्रोजेक्ट है विद डिफरेंट लैंग्वेज, एंड इसमें सिर्फ उतना ही नहीं समझाया, आई हैवंट एक्सप्लेन दैट मच ओनली, आई हैव एक्सप्लेन सो मेनी थिंग्स हियर, सो मेनी थिंग्स आई एक्सप्लेन। आर्किटेक्चर बताया, कंपोनेंट्स बताया, कुछ और भी, टोकनाइजेशन, सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें बताई, हालांकि कम टाइम है। ओके, को पढ़ाने में चार चार तीन तीन चार चार घंटे तो सिर्फ ये नहीं, कोई एक ही चीज़ को समझाने में लगते हैं। ठीक है, सो इतना मैं कर पाया हूँ। ठीक है, सो वी आर हैविंग सम शॉर्ट कमिंग्स रिलेटेड टू द वर्क, और यहाँ ओवर फिटिंग है, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा है, लेट मी शेयर दिस प्रोजेक्ट ऑन पब्लिक मोड। ठीक है, इसको मैं पब्लिकली शेयर कर देता हूँ। ओके, फाइन, ठीक। तो भाई ये हमारा एक प्रोजेक्ट और हुआ। आई होप दिस मेक्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, यदि ये जो भी अटेंड कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम, तो दैट्स हाउ वी डिड। ओके, फाइन। All right, thank you, Devesh. Let me stop sharing, let me